आगे ऐसे जगह में रहना है, बहुत ही गर्मी लग रहा है सच में। हाँ क्या हुआ, गाल लाल लाल हो गया तो। Cook or you can boil water here. Superfood right now. So this is a superfood. लद्दाख में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, जापान को हम लोग इसके अंदर कैटलिस्ट डालते हैं। मतलब कुंग फू क्लास शुरू हो गया। दामी रहेछ यता। Good morning guys, Thachidile Sewar Fifulo Namaste. This is your Darshan Thamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs. और guys आज मैं कांची के साथ आया हूँ। Hello कांची, good morning. How are you feeling today? हाँ? आओ एक सेल्फी लेते हो पहले। तो guys I am with कांची और स्पेशली आज हम आए हैं TD में। तो यहाँ पर TD फॉरेस्ट गार्डन, यहाँ का स्टोर दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द हिमालयन रॉकेट स्टॉप। आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पर एक स्टोर है जो कि ज़ीरो वेस्ट स्टोर। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये इको फ्रेंडली है एंड यहाँ पर कुछ भी प्लास्टिक यूज़ नहीं किया, जस्ट वुड इको फ्रेंडली चीज़ों से बनाया है। लेट्स एंटर TD। चलो कांची आ जाओ, बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा आइले आउँछ है। फॉरेस्ट जाने का रास्ता ऐसा है। कैसा लग रहा है? विलेज वाला हैन हो, अर्को वाला फिल कस्तो भन्नु दा? कस्तो वाला? एक्सप्लोरिङ एडभेन्चरस। एडभेन्चर वाला फिल? स्टेट ट्री अफ नागाल्यान्ड। हाँ। यहाँ पर TD में होम स्टे भी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओह यहाँ पर ये इसका नाम है माटो। हाय माटो, कैसे हो? है ना? ओह माय गॉड, यहाँ पर देखो। अभी मैं एंटर करने वाला हूँ, मतलब बहुत ही इको फ्रेंडली घर के अंदर। चलो आओ आओ कांची अंदर। हेलो उत्सव दा। और यहाँ पर है उत्सव दा। सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ TD। उत्सव दा TD को बारे में please say something about TD. Good morning everyone. My name is Utsav and I'm the founder of TD. Very warm welcome to Darshan and his team here to TD. I've been a big fan of Darshan and his Thank you so much. Yeah, we welcome them to experience what TD is all about. So this is a permaculture project where we are trying to restore this 1 acre of land which was earlier a dump yard, and while doing that we are trying to also take our local community along and trying to bring in permaculture based solutions which would mean clean energy, also which would help in reviving the quality of our air, our water and our soil. So this is a new project that we have started in alliance with Himalayan Rocket Stove. We are trying to bring a very clean energy and efficient stove and to make it accessible to everyone in Darjeeling. We've been in alliance with them since last year where we got 120 stoves and we installed it in our village at a subsidy cost. And also this year we are trying to kind of take it even more further. So we want people to have access to very clean heating as well as cooking solution. I don't think there is a better solution than a rocket stove in the market right now. और मुझे TD का स्पेशली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे वर्क फॉर लाइक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और यहाँ पर नया प्रोजेक्ट आप लोगों ने उत्सव दा से सुन ही लिया। दिस इज द हिमालयन रॉकेट स्टॉप। What this does is very energy efficient and it's based on rocket technology, which is an open source technology, but the Himalayan Rocket Stove team have done is they made it modular and they made it very accessible. How it works is you have a heating chamber here, so you can show. So the stove is burning here, and what you can do is you can either add wood or you can add something called briquettes, which is made out of sawdust. Okay, so this is upcycling of waste, and this is you can use normal twigs. So you don't need to cut trees. You can just take trimmings and branches of the trees and then just add it here. So now you see the stove is like burning bright, and what you do is just close this. I'll show you how the rocket technology works. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट है। Yeah, I'm extremely feeling hot. So now you see what is happening here is this is the rocket technology where the smoke is coming up and it's burning in a very octagonal fashion, and the fire is actually burning out the smoke also. Now what's also interesting is if you want to keep the heat within the room, so you can either cook or you can boil water here. If you want to keep the heat within the room, what I'll do is I'll just turn this lever up like this. So it traps the heat inside, starts heating up the room. Okay, okay. Right? And what that will do is you take the smoke and it gives it like a longer passage where it has to move down 3 feet, move up. So in the process, the smoke is also burnt out. There is 90% reduction of smoke. There is 50% less consumption of wood if you're using wood. And also it saves you a lot of time and money. And thankfully, due to the subsidy project, we are able to offer this rocket stove at a 60% reduction cost.
okay, which usually cost around 22,500. This is the Eco Mini model. They have got different models, and this is available just at 8,000 rupees right now. Including like home delivery and installation. Yeah, right? so we can do home delivery if there are about like 10 in one location. Okay, so individually we can't do home delivery, but installation, yeah, we'll come and do it. ओके ओके फीलिंग हॉट कांची देखो गाइस कांची को गर्म लग रहा है और मुझे भी काफ़ी मतलब गर्मी लग रहा है क्योंकि अभी ये जला हुआ ऐसे 5 मिनट भी नहीं हुआ अभी 3-4 मिनट हुआ है और अभी से देखो कितना हीट मतलब बहुत ही गर्मी लग रहा है सच में। देखो खिड़की भी खुला है सब कुछ खुला है फिर भी मतलब इसका जो तापमान है ना काफ़ी गर्म है। This kind of heat is good for our body, okay? Whereas the other kind of heat either through oil heaters or through let's say the rod heaters or even through like gas heaters, it'll heat up quickly and then it'll go down. So this is in Nepali we've got a perfect word for it. It's called nano. Okay, nano, yeah. So what I love about this chula is like you can see guys, it's like इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है मतलब अभी लकड़ियाँ जल रहा है और आपको यहाँ पर एक भी धुआं नहीं दिखाई दे रहा है देखो। और अगर यहाँ पर धुआं होता तो मुझे मतलब रूम के अंदर बैठ के वो मैं धुआं कंज्यूम करता और उसको मतलब उससे मेरे हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता, लेकिन इसमें ना यहाँ पर चिमनी लगा हुआ है और चिमनी में अगर आप देखेंगे देखो यहाँ पर चिमनी में मतलब धुआं ही नहीं आ रहा है देखो। Very little. So there's 90% reduction. धुआं नहीं दिखाई दे रहा है मतलब अगर नॉर्मल सा चिमनी होता नॉर्मल सा चूल्हा होता तो यहाँ पर मतलब इतना सारा धुआं था क्योंकि हमारे घर में भी चूल्हा है हम भी यूज़ करते हैं और नानी माँ के घर में चूल्हा है वो भी यूज़ करते हैं और मैंने देखा है मतलब लकड़ी जलाने के टाइम में कितना धुआं आता है, लेकिन यहाँ पर ये इसके कारण से आ रहा है क्योंकि ये धुआं यहाँ पे जल रहा है। ओके ओके गर्म हो रहा है ज़्यादा स्पेशली विंटर में बहुत ही अच्छा है ये। आप इसमें खाना भी बना सकते हो और नया नया डिश भी प्रिपेयर हम लोग यहाँ पे ये प्रिपेयर करते हैं टीडी में। सारा जो येकॉन सिरप बनता है ये हुड फायर्ड येकॉन सिरप है और ये येकॉन सिरप is considered as a superfood right now. So let's see if we can so ground apple syrup. Okay. So this is a superfood. It's like a natural sweetener. Diabetes के लिए दवाई बोलते हैं इसे। और right. कांची इसमें कुछ ऐड नहीं है बस उसका सिरप बना हुआ है। कैसा है टेस्ट? स्वीट मन पर्यो? तीन कप त्यस्तो लाग्दैन स्वीट कौन खान्छ? So यो चाहिँ नि अलि दही यानी टाइपको ज्यादा स्वीट पनि इट्स रियली टेस्टी। डायबिटिज ब्लड प्रेसर है अन्त ग्यासको बिमारीहरूको लागि चाहिँ ठुलो दबाई मान्छ। यो चाहिँ यहीँ बनिन्छ है? टक्टुक यहीँ बनिन्छ। ओके गाइस इट्स ऑन मेड ऑन रॉकेट स्टफ। सो ये जो प्रोडक्ट है योकॉन और ग्राउंड एप्पल सिरप तो यहीं पर ये बनते हैं, ये चूल्हा में बनाया है ना एंड इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। कितना 10-15 मिनट जलाया तो टेम्परेचर इज अराउंड वेरी प्लेजेंट 24.5 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो दिख रहा है आपको ये रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे करके कम करेगा क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण से हमारा कपड़ा ख़राब होता है प्लस हमारा सेहत को बहुत हानि होता है क्योंकि उसके कारण से फंगल इन्फेक्शन होता है। आपका कभी कभार खांसी होना या फिर आपको एक अजीब सा फीलिंग होना और स्पेशली मानसून के टाइम में हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये पहाड़ में क्योंकि मॉइस्चर लेवल्स वेरी हाई और दिस रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी एंड टेक्स इट बिलो 50। So what rocket stuff does is with this amount of heat that is radiating, right, it acts like a dehumidifier. You can burn it for a little while in the room. The whole moisture is taken out, right, and the humidity is reduced drastically. ये जो प्रोजेक्ट है आपने अभी तक सिर्फ दार्जिलिंग में किया है या फिर कहीं और भी? अपार्ट फ्रॉम दार्जिलिंग लद्दाख में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है okay. और आपका हिमाचल में चल रहा है, 3 और जगह में चल रहा है। ओके अगर इसको बुक करना है कोई अगर ये वीडियो देख के बुक करेगा तो उसको कैसे कांटेक्ट करें? आपकी स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है आप हम लोगों को उस नंबर में कॉल कर सकते हैं। दिस इज द टीडी हेल्पलाइन नंबर या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल्स में मिलेगा और उसी नंबर में आप लोग हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इफ यू सी दिस इज कॉल्ड चित्रा या चित्रा इट्स मेड अप ऑफ लाइक बैम्बू मालिंगो का जो चोया बोलते हैं उससे बना हुआ है एंड ऑल ऑफ दिस इज लोकल बैम्बू एंड इसको बट आधुनिक तरीका से जो थ्रेड रॉड से नेल किया है दिस इज विदाउट यूजिंग एनी नेल्स। इट्स ऑल थ्रेडेड सो नॉट बोल्ट का सिस्टम है। आपका एक बैम्बू खराब हुआ है तो आप अनस्क्रू करके उसको खोल के फिर से बना सकते हैं और उसमें आप जो लैंप है ये लैंप अब गेस करो किससे बनाया हुआ है? ये वाला लैंप चलो देखेंगे। नो यो या
ये ऊपर वाला हिस्सा तो बैम्बो है और बीच का हम बोलते हैं ये कोको में, मतलब ये टोटोला बोलते हैं, इसका फ्लावर है। It's a transparent. ओ दामी रहेछ यो है, इट्स भेरी नाइस। यसको त्यो साइडको लिफ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ नि त है, त्यही भएर मजाको। ये काफ़ी हल्का भी है। यहाँ पर आके सोने का मन कर रहा है मुझे। दिस इज अ पार्ट ऑफ होम स्टे राइट? होम स्टे। और ओके गाइज, अगर आप लोगों को यहाँ पर आके ऐसे जगह में रहना है, स्टे करना है, कैन जस्ट कम एंड मतलब बुक कर सकते हैं। तो नीचे उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ। क्या शीतल हवा है ना। चलो गाइज, एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। कि ये एक वॉशरूम है यहाँ पर। इसमें भी सीमेंट यूज नहीं हुआ, सो इसमें चूना और उसका रेड ऑक्साइड का वॉल है। लेकिन ये काफ़ी हार्ड है ना। वॉशरूम। चलो कांची, टाइम हो गया। Run किने म हाँ, क्या हुआ? गाल लाल लाल हो गया तो गर्म से, है कांची? हम नेक्स्ट रूम पे जा रहे हैं। काफ़ी जितना एक्सप्लोर करूँ उतना ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। कत्रो भयो। ये कांची का नया चपली। ये सीट के ऊपर में क्या है दादा? ये पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं इसे। सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट रूफ, और इसका एक फायदा ये है कि ऊपर से आपका पूरा लाइट भी आएगा, हीट भी करेगा। नहीं, बारिश के टाइम में वो लीक नहीं करेगा। लीक नहीं करेगा। रात में सो के आप स्काई का चंद्रमा को एक नाइट स्पेंड करने का मन कर रहा है ना। ओ यहाँ तो लुक एट दिस कोजी बैल्कनी, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखो नेस्ट है, बर्ड। चरा छैन होला यहाँ है। हॉस्टल के लिए जो कि मतलब बजट ट्रैवलिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी रूम है। चलो वहाँ पर दिखा दो। तो लोगों तो बजट वाला ही प्रेफर करेंगे, तो देखेंगे वहाँ पर क्या है। ये भी पीछे पीछे आया चुंगी। जापान गए वाला में सोन में चिवा आरिगाटो। ओह, ये देखो, ये डबल डेकर बेड है और सब बैम्बू से बना हुआ है। कितना बड़ा बड़ा बैम्बू है, देखो बैम्बू का बेड है। और ये छोटा छोटा लैडर्स है। ये पूरा हॉस्टल मतलब बैकपैकर्स, अगर आप लोग बजट ट्रैवल करके दार्जिलिंग में आके ऐसे इको फ्रेंडली जगह में रहना चाहते हैं तो टीडी इज़ द बेस्ट प्लेस। और आप लोग ऐसे कुछ वो मिलेगा। और यहाँ पर भी है ना वो चूल्हा, ये भी वो है ना हिमालयन रॉकेट। देखो स्पेशली ये विंडो देखो बहुत ही वाइड है और यहाँ का मतलब पूरा नीचे का फॉरेस्ट का व्यू दिखेगा आपको। तो इसको नाम दिया है जोमसा। जोमसा? हाँ, जोमसा मीन्स वो लद्दाखी लैंग्वेज है ये। वो मीटिंग स्पेस है। आपको आता है लद्दाखी लैंग्वेज? नहीं, थोड़ा बहुत लद्दाख, बट मैं गया हूँ और काफ़ी रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ का कल्चर मेरे को बहुत पसंद है। जोमसा का मतलब है कि मीटिंग स्पेस। दिस इज आवर क्लासरूम, उसका नाम दिया हमने जोमसा। यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस कराते हैं, स्पेशली पर्माकल्चर फोकस ट्रेनिंग कराते हैं। आप किस तरीके से पर्यावरण को आगे लेके या मदर नेचर के साथ किस तरह से आप काम कर सकते हैं, तो वो उस तरह से ट्रेनिंग होता है। और एक्सपीरियंशियल एनवायरमेंट लर्निंग, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लास होता है, बट ज़्यादातर आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेड्स प्रिपेयर हुआ है प्लांटिंग के लिए, स्प्रिंग के लिए। सो ये सारे नो टिल गार्डन है। हम लोग बारी को टर्न नहीं करते हैं, ओके। बारी को और जो मिट्टी है उसको वैसे रख के हम लोग उसके ऊपर खेती करते हैं। तो मिट्टी जो है, जो टॉप सॉइल है वैसे रहता है, तो इसे नो टिल गार्डन बोलते हैं। नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है, इसके कारण से आपका फर्टिलिटी बनाए रहेगा। दिस इज टीडी फॉरेस्ट स्कूल, और टीडी फॉरेस्ट स्कूल का एक क्लासरूम है। कंपोस्टिंग कैसे करना है, सो एक कंपोस्टिंग का मॉडल है। सो टीडी का एक इसे हम लोग मलबट्टा बोलते हैं। ओके, ये मम्मी जी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मम्मी जी फूलों के लिए बहुत कंपोस्ट बनाते हैं घर में, मतलब कुछ जुगाड़ करके बनाते हैं। तो लेट्स सी द रियल प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का वेरी सिंपल टेक्निक है। ये अपसाइकल प्लास्टिक बकेट्स है, जो प्लास्टिक बकेट्स ऑलरेडी प्रोडक्शन में आए हुए हैं, तो उनको हम लोगों ने ये अपसाइकिल करके कंपोस्टिंग यूनिट बनाया। तो उसमें यह है कि आपका एरेशन के लिए छेद हुआ है पूरा, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे छेद है, ऊपर भी छेद है, और देखोगे इसके नीचे भी छेद है। हाँ, नीचे भी छेद है। तो ये छेद करने का कारण ये है कि आप जब आपका फूड वेस्ट डालोगे इसमें, तो इसके अंदर जाए, उसके बाद हम लोग इसके अंदर कैटलिस्ट डालते हैं। तो कैटलिस्ट भी हम लोग यहीं पे बनाते हैं, जो कंपोस्टिंग करने का एक ऑर्गेनिक तरीका है। और उसके अंदर आईएमओज रहता है, इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपको हेल्प करता है, और वो फॉरेस्ट से लेके हम लोग। यूजुअली कंपोस्टिंग प्रोसेस में लोग डरते हैं, क्योंकि या फिर कीड़ा मकोड़ा से डरते हैं, या फिर जो हम लोग नेपाली में झिंगा बोलते हैं, या फिर उसका स्मेल से डरते हैं। तो इस सिस्टम में आपको ना तो स्मेल आएगा
ना तो आपका कीड़ा मकोड़ा आएगा। तो कैसे काम करेगा आपको दिखाता हूँ। आप इसमें डाल दिए, उसके बाद जो भी लिक्विड होता है यहाँ से निकल के यहाँ इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी छेद है। और इसके अंदर ऐसे कैटलिस्ट रहता है, जो ये कैटलिस्ट है, ठीक है, तो वो सोक इन करेगा। जैसे आपको इसमें फूड वेस्ट डालते हो तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको पकड़ के उसका खाना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली कंपोस्टिंग प्रोसेस वैसा ही रहता है। अब जैसे आपका इसके अंदर भर गया वेस्ट, आपने डाला, ये भर गया, तो सिंपल प्रोसेस आपको इसको नीचे करके ये ऊपर करना चाहिए। इट्स ऑल मॉड्यूलर। ओके ओके। सो ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में भर गया, तो आप क्या करोगे कि नीचे वाले में आप इसको डाल दोगे, लास्ट में डालोगे, और इसके नीचे छेद नहीं है, यानी वो लिक्विड बाहर नहीं जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। आपका लगभग 45 डेज में ये नीचे जो डालोगे वो कंपोस्ट हो चुका होगा। और आप उसको थोड़ा अगर गर्म जगह है तो आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। अगर ठंडा जगह है तो उसको आप 1 महीना और साइड रख लो, उसके बाद आप 3 मंथ्स के बाद उसको यूज़ कर सकते हो। यानी ये पूरा सिस्टम फैमिली ऑफ 4 to 5 को सपोर्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके घर से वेट वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, तो आप यू आर बीइंग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रादर देन बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या है दा गाँव स्कूल मतलब ट्रेनिंग टाइम में क्लास स्टार्ट होगा तो आपको मैं सुना दूँ। ये थोड़ा सा करने के बाद किचन नहीं है गाँव है के भन्छ लाई गाँव। ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब कुंफू क्लास शुरू हो गया। क्लास शुरू हो गया। और गाइस दिस इज कंपोस्ट टॉयलेट। गाइस आप लोगों ने बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी का टॉयलेट देखा होगा। इसमें मतलब एक बटन खींचने से पूरा साफ हो जाता है, लेकिन ये टॉयलेट्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। इसे कंपोस्टिंग टॉयलेट बोलते हैं। सो वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे स्मेल आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपको फ्लाइज दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो दिस इज फंक्शनल। तो ये क्या है कि जैसे हम लोग का पहले रहता था गाँव में, हाँ, कि आप एक होल किया आपने, और उसके अंदर आप या मिट्टी डाल सकते हो या फिर सॉडस्ट डाल सकते हो, बस उसको कवर कर दिया। ओके ओके। फिर 1 साल के बाद आपने उसको मूव कर दिया, उसको बारी में भी यूज कर सकते हो, कंपोस्ट और कर सकते हो। दार्जिलिंग जैसे जगह में जहाँ पे पानी का इतना अभाव है, तो ये वाटरलेस टॉयलेट, फायदा ये है वाटर सेविंग ट्रेमेंडस हो जाएगा। क्योंकि एक ही घर में लगभग आपका दिन में करीब 500 लीटर तो बाथरूम में चला जाता है, टॉयलेट में एक्चुअली। तो क्योंकि आप फ्लश करते हो, बट ये फ्लश करके और वो टॉक्सिक सेप्टिक सिस्टम में जाता है, अल्टीमेटली वो पोल्यूट करके आपके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि पानी तो ऊपर आएगा। इसके कारण से क्या होगा कि ये जो हमारा वेस्ट है, जिसे हम लोग ह्यूमन मैन्योर बोलते हैं, ह्यूमन मैन्योर, दैट इज एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल्स एंड फॉस्फोरस, जिसे NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, प्लस इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द सॉइल। बस इसको आप अपने टाइम पे कंपोस्ट करके करीब 1 साल करके, जिसके अंदर इसके अंदर ये बैक्टीरिया, इकोकोलाई सारा वो मर जाए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। के ल्याउनु भएको आन्टीले? ए हमारे यहाँ छोटा सा मंदिर है। ब्रिज में सेल्फी लेना है। वो ओपन क्लासरूम यहीं पर होता है, प्लस बॉनफायर एरिया। ये जो बना है ना, ये क्या बना है? डोको? ये क्या है? बैम्बू वीविंग का क्लासेस होता है यहाँ पे। तो ये सब भी सीखने को मिलेगा ना यहाँ पर? हाँ। ओ, तो इसको कैसे बनाते हैं? हाँ, कैसे use बनाते हैं इसको? चोया, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक चोया खिलाओ। तो मुझे भी सीखना है। कल्चर भी रहता है, और अलग से बैम्बू वीविंग वर्कशॉप्स भी कराते हैं हम लोग। हाँ। शाम के टाइम में आप यहाँ पे आके रुक सकते हो, हाँ। और यहाँ पर बॉनफायर करके बॉनफायर करके काफी अच्छा एरिया है। सारा हल्का म्यूजिक लगा के। अभी यहाँ से आपको क्लासरूम का व्यू दिखेगा। ओ हाँ, दामी रहेछ यता मन्दिर है। तो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। यो चाहिँ कस्तो मन्दिर हो त? के छ? द हिमालयन रॉकेट चूल्हा में बना हुआ ब्लैक टी। ब्लैक टी विथ कंची। Thank you. हम आए हैं कंपोस्टिंग एरिया में, तो चलो देखेंगे यहाँ पर अंदर कैसे ये प्रोसेस चलता है। उयो नै छ, उयो के भन्छ यसलाई? ये कम्युनिटी कंपोस्टिंग यूनिट है, सो जिसके कैपेसिटी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 200 kgs अ डे, और यानी करीब
200 घर को सपोर्ट कर सकता है ये। अभी हम लोग का गांव का जो कंपोस्ट होता है यहाँ पे होता है, और ग्लेनरीज का भी वेस्ट यहाँ पे आता है। बीच में कैफ़े कुशिंग डायरीज का भी आ रहा था। तो उसमें क्या है कि ये डिज़ाइन हम लोगों ने खुद बनाया है, जिसमें आप कंपोस्ट हो रहा है, ना आपको स्मेल मिलेगा यहाँ पे, ना आपको कुछ मिलेगा। और साथ साथ में ये कंपोस्ट करने का हमारा जो BFF बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, ये हमारा चिकन है, क्योंकि इनको खाने में मिलेगा प्लस पेस्ट कंट्रोल भी कर लेंगे। वेरी गुड क्वालिटी एग्स जो होता है एज अपोज टू ब्रॉयलर, ये सारे लोकल चिकन है। सो एज अपोज टू ब्रॉयलर एग्स आपके लिए, आपको जो देसी मुर्गे का अंडा है बहुत अच्छा है। तो इस सिस्टम में आपका मुर्गे भी सपोर्ट हो गया, और आपको एक्स्ट्रा फीड भी देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना आपको खाना है उनको खाना है यहीं से खा लेते हैं। प्लस ये लोग आप यहाँ का पेस्ट कंट्रोल भी कर देते हैं, और आपको उनके थ्रू अंडा भी मिल जाता है। और साथ साथ में इसका जो लीचेट होता है, तो आप बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा एक पाइप से एक पानी निकल रहा है, तो नेचुरल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। तो आपको ये कंपोस्टिंग यूनिट से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वो, तो आपको वो डाइल्यूट करके यू कैन यूज इट ऑटोमेटिकली इन योर फील्ड। डकलिंग्स यहाँ रहेछ नि त चेपमा है, ये बच्चा हो म इसके ये अंडे के ऊपर है अभी। तो कितना दिन में निकालेगा ये? 30 दिन में चिकन निकालेगा। 30 दिन में? अभी कितना दिन हुआ? अभी 8 दिन हुआ है। कितना अंडा है इसका? इसका अंदर अभी 10 अंडे के ऊपर बैठा हुआ है। ओके। और यहाँ पे भी है चिकन बैठा तो हुआ है। ये चिकन है ना, ये अपने अंडे के ऊपर बैठा है। के हो? उयो Hamster? हेर्नु न सानोवाला ओ कस्तो क्युट नि। दे आर रियली क्यूट। अब कतिवटा छ यहाँ? 1 2 3 4, सबसे बड़ा। छोटा वहाँ पर है, वो यहाँ पर भी है अंदर बड़ा। देखो गाइस, यहाँ पर हैमस्टर भी है और काफ़ी क्यूट है। कान्छी को पसंद आया? कस्तो क्युट हुन्छ यस्तो This is a solar dehydrator. अभी हम लोग इसमें we use it to dehydrate करके आप उसको लंबी समय तक किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। मेन फूड आइटम्स में प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसको देखो, तो यहाँ पे ये डिहाइड्रेट हो रहा है। जो हम लोगों ने खाया था वो सिरप था, अभी आप ग्राउंड ग्लूकोन का तितौरा खाओ। वो ये ग्राउंड एप्पल का ये ग्राउंड एप्पल का तितौरा खाओ। अच्छा, और आपको इसमें कुछ ऐड नहीं है, ब्लस ग्राउंड एप्पल सिर्फ ड्राई किया है ना? ड्राई किया, स्वीट टेस्ट आ रहा है इसमें, ऑटोमेटिकली इसका ही टेस्ट है। प्लस इट्स एक्सट्रीमली, ये रोडोडेंड्रन है ना? इसको भी ड्राई करके, ये बीजन है ट्री टोमेटो, रूट टोमेटो का। सो इसको भी आप बीजन को भी सुखा सकते हो, जैसे ये साईपत्री का बीजन है, ये खोसानी का बीजन है, इसको भी सुखा के हम लोग इसके अब टी बनाएंगे। रोडोडेंड्रन का टी भी होता है उसका? बहुत अच्छा टी होता है, वेरी हेल्थ बेनिफिट। इसको कैसे बनाना है? ये सूख जाएगा, उसके बाद नॉर्मल चाय पत्ती की तरह आप डाल सकते हो। वो हमारे घर में भी है ना रोडोडेंड्रन, इसमें ट्राई तो करूँगा। आप सुखाओ इसको, और सुखाने के टाइम आपको कभी भी डायरेक्ट सन में मत सुखाना, फिर उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी चला जाएगा। शेड में सुखाओ। और ये सिंपल डिज़ाइन, ये अब ये जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल ये फैन में कनेक्टेड है। वो यहाँ पर फैन है। सो फैन ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो कांची को मुझे लग रहा है ये पसंद आएगा। थैंक यू। बीच पनि रहेछ। बीच। ओके उत्सव, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ये टीडी आके एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। फिर आएंगे। थैंक यू। और मुझे भी बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिला, और आगे भी सीखेंगे आपसे। जो हमने सीखा विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर मतलब टीम, और दूसरों लोगों को भी हम अवेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दा। है फिर मिलेंगे चलते चलते है। बाय 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 माटो। ओके गाइज, टीडी में एक्सप्लोर करके कैसा लगा कांची? तो मैं कांची के साथ आया था। नाइस एक्सपीरियंस हो, बस आ रहा तो गाइज हम लोग बाइक में आए थे, बाइक लेके। ये देखो हमारे बाइक, तो बाइक का नामकरण हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट जब मैं बाइक राइड में जाऊंगा तब बताएंगे। और कांची का चॉइस का नाम है नहीं कांची। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय कांची।